اس ناولٹ کا خلاصہ آپ کے لیے۔ وہ اب اپنے میکے بھی جلدی جلدی نہیں جاتی تھی۔ ایک تو یہ کہ سب رقیم کی بابت پوچھتے تھے، یا پھر یہ سوال بھی ہر آیا گیا ضرور پوچھتا تھا، وہ کب دبئی جا رہی ہے؟ کبھی کبھی الٹے سیدھے کمنٹس بھی سننے کو ملتے، دبئی کون سا دور ہے، لے کر کیوں نہیں جاتا؟ مسئلہ کیا ہے؟ ساس نہیں بھیجنا چاہ رہی ہوگی، اسے غصہ آنے لگتا۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک بہت ہی پیارا سا ناولٹ آپ کے لیے حاضر ہے، جس کا نام ہے دل رسم دنیا کیا جانے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، کمنٹ اور لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر اس کا آغاز کرتے ہیں۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی جب رقیم نے مسکراتے ہوئے اریبہ سے کہا، مجھے جانا ہوگا، جانا بہت ضروری ہے، سمجھا کرو۔ وہ اس وقت اریبہ کے ہاتھوں کی چوڑیوں سے کھیل رہا تھا۔ اریبہ اس کی بات سن کر چونک گئی اور آہستہ سے اپنا ہاتھ کھینچ کر اپنے ہاتھوں کی مہندی کو بغور دیکھنے لگی۔ بھائی ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے اریبہ کے ہاتھ دوبارہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، آپ یہ بتائیں کہ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا کہ مسعود بھائی کا فون آیا ہے، کچھ کام ہے وہاں، وہ بلا رہے ہیں۔ مگر آپ نے تو کہا تھا ابھی 1-1.5 مہینہ رہیں گے۔ بتایا نا بھائی، کام ہے کچھ۔ ایسا بھی کیا کام جو بندہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر چل دے؟ وہ افسردہ سی ہو گئی مگر کچھ بولی نہیں۔ کہاں کھو گئیں؟ اس نے اریبہ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ ہاں ہاں، بس ایسے ہی اداس ہو گئی ہو، ہے نا؟ آپ خوش ہیں؟ اس نے نظریں اٹھائیں۔ میں؟ ہائے، میرا کیا پوچھتی ہو؟ میرا بس چلے تو بس یوں ہی بیٹھا رہوں تمام عمر۔ وہ اس سے قریب ہوتا بڑے جذب سے بولا۔ پھر ایسی کیا مجبوری ہو گئی بلا وجہ؟ کہہ دیں آپ نہیں آ سکتے، وہ بڑے ناز سے بولی۔ محترمہ بیگم صاحبہ، مسعود بھائی گو کے کزن ہے میرے، مگر آرڈر انہوں نے باس بن کر دیا ہے۔ کچھ بھی ہو، وہ ضد کرنے لگی۔ ایسے نہیں کہتے، بڑے مزے سے کام چل رہا ہے، مجھے جانا ہوگا، جلدی آ جاؤں گا، پرومس۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ اس کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ رقیم کچھ دیر بغور اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر آتی ہوئی لٹ کو سنوارتے ہوئے بولا، نہیں جانوں، یہ ممکن نہیں، ابھی مجھے اکیلے ہی جانا ہوگا۔ ہاں، بعد میں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، کیونکہ اب میرا دل بھی وہاں لگنے والا نہیں۔ ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ وہ خفا ہوئی۔ کیا کروں جو تمہیں یقین آ جائے؟ وہ نیم دراز ہوتے اس کو اپنے ساتھ ہی کھینچتا گیا۔ چھوڑیں چھوڑیں بس مجھے۔ دیکھو، چھوڑنے کے لیے تو میں نے تھاما ہی نہیں ہے، پھر کیوں چھوڑے جا رہے ہیں یہاں اکیلے؟ اکیلے؟ وہ زور سے بولا۔ بیوی، خدا کے غضب سے ڈرو، اکیلا تو میں جا رہا ہوں بیچارہ، یہاں تو سب ہیں، امی، ابو، کنول، بصیر اور تمہارے گھر والے۔ مگر وہ رقیم؟ ہاں، اگر مگر کچھ نہیں، ذرا سوچو، دبئی کا تپتا صحرا اور یک کو تنہا میں تمہاری محبت میں چور سڑکوں پر گاتا ہوا، ہائے کیا منظور ہوگا۔ ضرور گائیں گے، آپ کو یہاں تو کبھی گنگناتے بھی نہیں سنا، تو ابھی آپ نے سنا ہی کیا ہے جناب، دیکھا ہی کیا ہے؟ ہمارے جوہر تو رفتہ رفتہ کھلیں گے آپ پر، جب ساتھ رہیں گے۔ ساتھ رہیں گے جب نا؟ وہ اپنے ہاتھوں کو توڑ مروڑ رہی تھی۔ توبہ کرو بھائی، ساتھ کیوں نہ رہیں گے؟ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکاتا ہوا بولا۔ بس سمجھو، یوں گیا اور یوں آیا، وہ اپنے ہاتھوں سے جہاز اتارتا ہوا بولا۔ وہ الجھ گئی تھی، سسرال توقع سے زیادہ اچھی تھی، کمل کی صورت میں اسے ایک اچھی دوست مل گئی تھی۔ بصیر رقیم کی طرح جولی موڈ کا نہیں تھا، مگر اپنے کام سے کام رکھنے والا خاموش طبع لڑکا تھا۔ بس یہ رقیم ہی تھا جو سارے گھر میں ایک شور ہنگامہ بپا رکھتا تھا۔ اور اب جب کہ شادی کو کل 1 ہفتہ گزرا تھا، جانے کے لیے تیار تھا، وہ کیا کرے؟ وہ تو اس سوچ کر ہی دکھی ہو جاتی تھی کہ 1-1.5 مہینے بعد وہ چلا جائے گا، اور وہ تو ابھی سے جا رہا تھا۔ امی ابو حتیٰ کہ کنول تک اسے معمول کے مطابق جان رہی تھیں۔ بھائی تو ایسی ہی موڈی ہیں، جو جی چاہے جب جی چاہے کر گزرتے ہیں۔ یہی بات ہوگی، یہ خود ہی جانا چاہ رہا ہوگا، مسعود بھائی کا تو بس نام ہے، اس نے چپ کے سوچا۔ رقیم کی سیماب طبیعت کا حال وہ دیکھ رہی تھی، نچلا بیٹھنا تو اسے آتا ہی نہیں تھا، کبھی کنول کو چھیڑ رہا ہوتا تو کبھی بصیر کو۔ وہ تو امی اور ابو پر بھی کوئی نہ کوئی جملہ کس جاتا۔ شادی کے بعد اریبہ بھی نہیں بخشی گئی۔ ہاں، جب وہ سب کے سامنے اریبہ پر کوئی جملہ چست کرتا تو اسے فوراً ہی امی سے ڈانٹ پڑتی۔ کبھی کنول کی مدد اریبہ کو مل جاتی۔ اللہ بھائی، بھابھی بیچاری کو ابھی سے مشکل میں مت ڈالیں، آپ کی بات سمجھنے کے لیے انہیں وقت چاہیے۔
कभी अब्बू प्यार से तनबीह करते, रकीम, वो अभी तुम्हारी शरारतों की आदी नहीं। अरीबा को ये मोहब्बत भरा माहौल बहुत अपना अपना सा लगता। शादी के शुरू दिनों के ख्वाब आगे लम्हे गुजारते तो इसे पूरी ज़िंदगी खुश रंग धनक के रंगों से सजी लगने लगी थी। वो अपनी किस्मत पर नाज़ां थी। ऊंचा लंबा वजीह रकीम जो हंसने और हंसाने का हुनर भी जानता था, और इसे क्या चाहिए था। वो खुदा का शुक्र अदा करने के साथ साथ अपने वालिदैन की भी ममनून और मशकूर होती, जिन्होंने इसकी ज़िंदगी का ऐसा साथी चुना था। और अब वो आंखें बंद करके सारी लड़कियों को मशवरा देना चाहती थी कि इधर उधर मत देखो, अपने वालिदैन पर एतमाद करो, यकीनन उनका इंतखाब बेहतरीन होगा। कितना कहा था इसकी छोटी बहन नादिया ने कि आप भी एक मरतबा तस्वीर तो देख लो, मगर उसने इनकार कर दिया था। कोई ज़रूरत नहीं, जो अम्मी पापा करेंगे ठीक ही होगा। और शायद इसी अंधे एतमाद और वालिदैन पर एतबार का सिला इसे रकीम की सूरत में मिला था। वो खुश थी, बल्कि बहुत खुश थी, मगर इसकी खुशी की उम्र इतनी थोड़ी थी। ये सोचकर इसकी आंखें नम हो रही थीं। रकीम कल जा रहा था, इसे अपनी जॉब ज्वाइन करनी थी, जाना ज़रूरी था। हालांकि शादी के तीसरे दिन अरीबा के पूछने पर इसने हंसकर कहा था, 1-1.5 महीने की तो समझो कन्फर्म छुट्टियाँ। मसूद भाई ने कहा था जाओ ऐश करो, मगर यार अब लगता है जा ही नहीं पाऊँगा। क्यों? वो ड्रेसिंग टेबल पर थी और क्लिनजिंग कर रही थी। मुड़कर पूछने लगी, फिर इसके अंदाज पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और चेहरे पर फिदवियाना तासुरात सजाए इसकी तरफ देख रहा था। इस वक्त अरीबा को यूँ लगा कि सारी दुनिया इसके कदमों के नीचे आ गई हो। फिर जब वो सीने पर हाथ रखकर अपनी आंखों में मोहब्बत के ढेरों रंग समोए बोला, ए शहवारे हुस्न, मेरा दिल है मेरा दिल, ये तेरी सरजमी है, कदम नाज से उठा। तो अपनी खुशकिस्मती पर वाकई नाज़ा हो गई। और अब वो कह रहा है कि जाना होगा। कितना कुछ कहना सुनना बाकी था। अभी तो खुल जा सिम सिम के दरवाजे पर दस्तक ही दी थी और वो जा रहा था। कैसा बेदर्द है, ज़रा भी तो एहसास नहीं। कितना खुश खुश नज़र आ रहा है। बोगस दावे थे इसके, इसे मुझसे शायद कोई मोहब्बत हुई ही नहीं। सारी दुनिया बस इसके वजूद में सिमट आई है। वो सिसकने लगी। वो कमरे में आए तो अंधेरा देखकर इसे हैरत हुई। स्विच ऑन किया तो सामने तकिए में मुँह छुपाए अरीबा पर नज़र पड़ी। अरे क्या हुआ भाई, ये सरे शाम ही नींद आ गई क्या? लगता है रज्जगे की तैयारी है। हैं ये क्या, बिन बादल बरसात कैसी? वो इसकी भीगी आंखें देखकर मुस्कुराया। इतनी जल्द थल मचाओगी तो मैं बेचारा एयरपोर्ट कैसे जाऊंगा? वो इसकी आंखों को अपनी उंगलियों के पोरों से साफ करते हुए बोला, क्या हुआ है, कुछ बोलो तो। कुछ नहीं कहना है मुझे, वो रूठी रूठी बोली। एक बात कहूँ? कहिए, रूंधी हुई आवाज़ में बोली। इस तरह भीगी भीगी आंखों के साथ रूठी रूठी तो तुम और भी प्यारी लग रही हो। जी चाह रहा है कि? वो रुका। कि रुक जाऊं ना जाऊं? अरीबा ने बात पूरी की। नहीं, जी चाह रहा है कि यूं ही सालिम निकल जाऊं, फिर फ़ौरन दुबई भाग जाऊं। खिलखिलाकर हंसा। वो इसके हंसने पर बुरी तरह हर्ट हुई और शिद्दत से रोने लगी। पागल हो गई हो क्या? इसने इसे अपने साथ लगाते हुए कहा। आप नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि आपने कभी मोहब्बत ही नहीं की और तुमने डॉक्टरेट कर ली, PhD लग रही हो। बिल्कुल लग रही हो क्या मतलब? समझने की कोशिश करने लगी। हाँ, PhD। दिमाग के सामने उंगली घुमा कर बताने लगा। फिरा हुआ दिमाग। और वो इसके सीने में मुँह छुपाकर अपनी हंसी जब्त करने लगी। रकीम चला गया और घर में सब के होते हुए भी अरीबा ख़ुद को तन्हा तन्हा महसूस करने लगी। हालांकि सभी इसका ख्याल रख रहे थे। अब्बू बहुत शफीक थे तो अम्मी फितरतन मेहरबान। इसे हैरत हुई थी कि अगर सबकी सासें यूँ ही होती हैं तो इस सास बहू का झगड़ा कैसे होता है। वो अरीबा का बहुत ख्याल रखती थी। अरीबा ने खुद ही इसरार करके घर के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, तो भी उन्होंने इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली, बल्कि सहूलत से मना ही करती रहती थी। अरे ये भी रहने दो, सब कुछ तुम्हें ही करना है, कुछ दिन तो दुलनापे के गुजार लो। और उनके इस तरह कहने पर इसे उनसे नज़रें चुराना पड़ती थी। अपनी आंखों की नमी छुपाने के लिए कैसा दुलनापा, वो तो था ही नहीं। वो इसरार करती खाने पीने पर, पहनने ओढ़ने पर, टोकती मगर वो टाल जाती। किसको दिखाना था, वो तो था ही नहीं। कभी कभी वो हैरत से सोचती थी निकाह का बंधन भी क्या होता है। 4 दिन साथ रहने के बाद अब ना खाने को जी चाहता है ना पहनने को। हर बात में यह एहसास रहता था वो तो है ही नहीं। फिर वो ख़ुद को घुरकती। बुरी बात है अरीबा, ऐसे नहीं करते। ये सब लोग इसके अपने हैं। तुम्हारा साथ तो 4 दिन रहा और ये लोग तो हमेशा से इसके साथ के आदी हैं। फिर भी सब हंसी खुशी रह रहे हैं।
तुम्हारा इतना ख्याल रख रहे हैं, फिर बिला वजह अफसरदगी दिखाकर सबको परेशान करना कोई अच्छी बात है। वो अहद करती कि अब किसी को भी अपना उदास चेहरा नहीं दिखाएगी, मगर कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती जो इसे उदास कर जाती। तब इसने सोचा वो अपने अमल को ऐसा बनाए जिससे सबकी मोहब्बतों का हक अदा हो। और ये सब भी कौन है? रकीम के चाहने वाले, और ख़ुद रकीम भी तो इनको चाहता है। इसने और भी खलूस से अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ, कंवल तो शुरू ही से इसके साथ साथ थी। अब बसीर जो थोड़ा अलग थलग रहता था, इसका ख्याल रखने लगा। और अरीबा ने इसमें एक भाई को ढूंढ लिया। अरीबा को कोई भाई था भी नहीं, यूँ वो एक नई तर्ज़ मोहब्बत से आशना हुई। शुरू शुरू में जब रकीम का फ़ोन आता था तो वो सिवाय रोने के और कोई बात भी नहीं कर पाती थी। ये बड़ी बात थी, सब लोग इसे बात करने का मौका देते थे और इधर उधर हो जाते थे। वैसे सेल फ़ोन पर मैसेज भेजे जाने का सिलसिला भी जारी था। ख़ुसूसन रातों को तो खूब लंबे लंबे मैसेज भेजा करता था। वो मैसेज देती, कब आओगे, जल्दी आ जाओ, और वो जवाब देता, अरे अभी तो आया हूँ, अभी बहुत काम है। तो गुस्से में अपने सेल को ऑफ़ कर देती। कुछ देर बाद जल्दी से ऑन करती और ख़ुद को डांटती, पता नहीं इसने कॉल की हो। वो अब अपने मैके भी जल्दी जल्दी नहीं जाती थी। एक तो ये कि सब रकीम की बाबत पूछते थे, या फिर ये सवाल भी हर आया गया ज़रूर पूछता था, वो कब दुबई जा रही है। कभी कभी उल्टे सीधे कमेंट्स भी सुनने को मिलते थे। दुबई कौन सा दूर है, ले क्यों नहीं जाता, मसला क्या है? सास नहीं भेजना चाह रही होंगी। इसे गुस्सा आने लगता। एक और भी बात थी, इसे अब अपने कमरे के सिवा कहीं नींद नहीं आती थी। बड़ी अजीब बात है, सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद यकयक वो घर, वो कमरा, वो बिस्तर, वो पराया हो जाता है। इसकी अम्मी भी समझदार थी, खूब अच्छी तरह जानती थी कि अब अरीबा का घर इसका ससुराल है और वहाँ जगह बनाने के लिए ज़रूरी है कि वो दौड़ दौड़ कर मैके का चक्कर ना लगाए। फिर जबकि इसका ख़ुद दिल वहाँ लगता है और कोई परेशानी भी नहीं। भला कदरदान ससुराल से बढ़कर क्या नेमत होगी। वो अरीबा से यहाँ रहने के लिए इसरार भी नहीं करती थी। रमज़ान का महीना जहाँ इबादतों का महीना होता है, वहीं ईद की तैयारी के लिए भी यही दिन तो होते हैं। ईद, जहाँ अरीबा की शादी के बाद ये पहली ईद थी। वो अपनी सास के कहने पर उनके साथ जाकर अपने ईद का जोड़ा ले आई थी, मगर इसे बार बार ख्याल आ रहा था कि काश वो होता। वो इसके साथ जाकर इसकी पसंद से अपने लिए ईद के जोड़े का इंतखाब करती। इसे बहुत सताती। फिर वो ये सोचकर उदास हो जाती है कि वो ईद के दिन भला किसके लिए तैयार होगी। वो तो वहाँ जाकर भूल ही गया था। यह अरीबा का ख्याल था, क्योंकि इसके पूछने पर कम अज़ कम ईद पर तो आ जाएं। वो हंसकर इसके लहजे की नकल उतारता, कम अज़ कम, वाह, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं। वो नाराज़ हो जाती। रमज़ान में हर घर के अपने ही तौर तरीके होते हैं। अमूमन घरों में सहर व अफ्तार पर एहतमाम होता है। सबकी पसंद को मलहूज़ खातिर रखा जाता है। सब बड़े छोटे इकट्ठे होते हैं। ऐसे में जो लोग मौजूद ना हों, ख़ास तौर पर मुल्क से बाहर रहने वालों की याद बहुत आती है। रोज़ ही कोई ना कोई बात ऐसी निकल आती जब रकीम का जिक्र छिड़ जाता। अम्मी याद करती, इसे ये पसंद है, उसे वो पसंद है। अब्बू याद करते, शोर शराबा कैसे रखता है, रौनक है वो घर की। भाई चाहते हैं कि अफ्तार में बहुत कुछ हो। इतनी लंबी सजी हुई मेज़ देखकर भी तसल्ली नहीं होती, और इतना कुछ तो बाज़ार से उठा लाते हैं। बसीर को याद आता कि वो लोग मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स के पैकेजेस से फ़ायदा उठाते थे और अफ्तार और सहर के लिए निकल जाते थे। बड़ा मज़ा आता था। और वो सोचती कैसा गुज़रता ये रमज़ान, काश वो आ जाता। सारी बड़ी रातों में जाग जाग कर इसकी ज़िंदगी, इसकी खुशी के लिए दुआएं मांगती रही कि अब दुआओं का महवर वही तो था। अरीबा की अपनी ज़ात तो कहीं बहुत पीछे चली गई थी। चांद रात को तो इतना मज़ा आता है भाभी कि क्या बताऊं। हम लोग अमूमन पीसी के चांदनी लाउंज में चांद देखने जाते थे। भाई मानते ही नहीं, हालांकि अम्मी अब्बू मना भी करते हैं, मगर वो उन्हें मना कर छोड़ते थे। वहाँ अफ्तार और डिनर के बाद अमूमन चांद देखकर हम लोग बाज़ार का चक्कर ज़रूर लगाते थे। हाय अल्लाह, उस दिन तो बहुत रश होता है बाज़ारों में। अरीबा को हैरत होती, ऐसा वैसा भाभी, खवे से खवा चलता है। मगर भाई कहते हैं कि हल्ले गुल्ले के बग़ैर ईद का मज़ा क्या। वो हमेशा मुझको चूड़ियाँ पहनाने ले जाते हैं, मगर इस मरतबा कमल चुप हो गई। अरीबा को भी अजीब से एहसास ने घेर लिया, और अब अपनी सास के इसरार पर भी बसीर के साथ चूड़ियाँ पहनने नहीं गई। ले आऊँगी किसी दिन, अजीब बेइतनाई से बोली, और रात देर तक तकिया भिगोती रही। ईद से 2 दिन पहले ही वो कमल के साथ घर की तफसीली सफाई में लग गई।
वैसे तो पूरे रमज़ान वो लोग घर के लिए शॉपिंग करती रही थी और घर को भी कुछ न कुछ नया रंग देने में मसरूफ़ थीं, मगर एक मरतबा फिर दोनों नंद भावज सेटिंग बदलने पर कमर बस्ता थी। अम्मी ने मना भी किया, बिला वजह हलकान होगी। फिर इसकी दिलचस्पी देखकर खुश भी हुई। आज 29वां रोज़ा था। वो दोनों सुबह से लगी हुई थी, कभी ये झाड़ कभी वो पोंछ। अब अफ्तार का वक्त हो रहा था। अम्मी ने डांटना शुरू किया, अरीबा, कमल, चलो छोड़ो, सब इधर आओ। जी। एक हाथ में झाड़ू दूसरे में झाड़न पाइंचे चढ़ाए हुए अरीबा को देखकर वो बोली, बस करो बेटा, ऐसी भी क्या मुश्किल आ पड़ी है। अफ्तार का वक्त हो रहा है, जाओ जल्दी से नहा कर आओ। आज चांद ना हो तो कल सफाई कर लेना। बस अम्मी, थोड़ा सा काम रह गया और आज चांद हो जाएगा। अरे बेटा बस करो, तुम्हारा मियाँ यहाँ होता तो समझता माँ ने मेरी बीवी को ये किस काम पे लगा दिया है। वो इसका हुलिया देखकर हंस रही थी। तभी हाथों में सूटकेस उठाए बोतल की जिन की तरह नमूदार हो गया। समझता क्या अम्मी, मैं सब अपनी आंखों से देख रहा हूँ। हाय मेरी बीवी बेचारी। अम्मी के साथ साथ वो भी हैरान हो गई थी। तुम कैसे आए? एकदम अम्मी खुशी से निहाल हो गई। ऐसे उनके कंधे में झूल गया। वो वैसे ही दम बखुद खड़ी थी। खुशी और हैरत दोनों ही ने मगलूब कर रखा था। ये नई मासी रखी है। अम्मी के गले लगा शरारत से कह रहा था, बुरी बात, एक तो वो घर को सजा संवार रही है और इस पर। वो इसे प्यार से मारती हुई बोली, वैसे अम्मी एक बात है, मासी है अच्छी। पूरी तरह शरारत के मोड में था। यही तो मैं कह रही थी तुमसे, खुदा ने एक बहुत अच्छी बहू से नवाजा है मुझे। बहू नहीं जानो, एक और बेटी मिल गई मुझे। जाओ अरीबा, अपने कमरे में जाओ। ये तो बस ऐसे ही। अरीबा ने झाड़ू छोड़ दिया और अपने कमरे में भाग गई। हैं, ये इस्तकबाल किया है मिजाजी खुदा का, झाड़ू से गज़ब है भाई। वो अपने कमरे में मुसलसल सोच रही थी, कैसा बेईमान आदमी है। 2 दिन पहले मना कर दिया और अब यूँ आ गया जैसे प्लान हो। बाहर से सबके हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थी। वो बहुत खुश थी, मगर इसने सोच लिया था कि कुछ सज़ा जनाब आली को भी मिलना ही चाहिए। और तैयार होते हुए इसने नाराज़ी दिखाने का मंसूबा बनाती रही। आज अफ्तार में रोज़ से ज़्यादा मज़ा आया। सब खुश थे, यही तो बात थी इसमें। वो जैसे सारे मंज़र में ज़िंदगी भरना जानता था। अरीबा ने बड़ी मुश्किल से ख़ुद पर काबू पाया हुआ था। झूठ मूठ मसरूफ़ियत दिखाती रही और यूँ ज़ाहिर करती रही जैसे वो बेगाना ना हो या ख़ुद अरीबा को इसकी ज़रा भी परवाह ना हो। फिर जब वो कमल की किसी बात पर मुस्कुराई तो कमल से बोला, चांद हो गया। चांद हो गया का शोर मचा तो सब और भी खुश हुए और एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। कमरे में चलो ईद की मुबारकबाद देने। वो चुपके से इसके पास आके बोला। सुनी अनसुनी करके अब्बू के कमरे में चाय देने चली गई। वहाँ से वापस आई तो देखा रकीम अपनी अम्मी के कंधे से जुड़ा चुपके चुपके कुछ कह रहा है और वो कुछ संजीदा सी नज़र आ रही हैं। अरीबा इन दोनों को यूं ही बातें करता छोड़कर किचन समेटने लगी। अभी वो काम कर ही रही थी कि कमल इसके पास आई। भाभी आप रहने दें, अम्मी कह रही हैं कि आप अपने कमरे में जाएं। इसने पलटकर कमल की तरफ देखा। कमल का चेहरा खिलाफ मामूल उतरा उतरा सा था। क्या हुआ कमल? बेसाख्ता पूछ बैठी। ऐसे ही भाभी, अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। भाई जो वापस जा रहे हैं। वो ज़ोर से चिल्लाई और इसके हाथ से गिलास गिरकर टूट गया। वो अपनी कैफियत को समझ नहीं पा रही थी। झुककर गिलास का टूटा कांच समेटने लगी। फिर इसके हाथ में कांच लग गया। भल भल बहते खून को देखकर कमल ने जल्दी से इसे रोका। ये क्या कर रही हैं? छोड़ें आप। वो इसका हाथ पकड़े खड़ी थी। कोई बात नहीं। इसकी आंखें नम थी। अम्मी देखें, भाभी का हाथ कट गया है और वो मेरी बात भी नहीं मान रही। कमल सामने से आती अम्मी को देखकर उन्हें मदद के लिए बुलाने लगी। अरे ये कैसे हुआ? चलो बाहर, ये तो अच्छा खासा कट गया है। फिर इसके हाथ उन्होंने खुद ही सामने बेसन पर धुलाए और इसे आराम की तलकीन की। वैसे भी दिन भर की थकी हो, इस पर आज का हंगामा। अभी तो रकीम के जाने का वक्त हो जाएगा, वो खुद ही बोल रही थी। जबकि अरीबा बिल्कुल खामोश थी। वो आई तो ये देख कर के रकीम बेड से टेक लगाए नीम दराज है, चुपचाप बैठ गई। हालांकि इसका जी चाह रहा था रकीम से खूब लड़े कि इस तरह जाना था तो आने की क्या ज़रूरत थी, मगर वो जालिम मुतवज्जा होता तो कहती। वो चुपचाप इसे देखती रही। कितने दिनों बाद देख रही थी, कुछ कमज़ोर लग रहा था। वहाँ पता नहीं कौन होगा जो ख्याल रखे। वो खालिस्तान बीवियों के अंदाज से सोच रही थी। रकीम ने आहिस्ता से आंखें खोलकर जायज़ा लिया। दिमाग दुरुस्त हो गए मोहतरमा के?
गुस्सा दिखा रही थी, यानी हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। कुछ सोचकर मुस्कुराया, फिर एक अदा से आंखें खोली। ज़रा आँख लग गई थी। ज़रा जल्दी जल्दी प्रोग्राम बना, सुबह से मैं पाँव में चक्कर बांधे घूम रहा हूँ। आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? वो सब बेहद भूल भाल कर बोली। हाँ जानम, बस तुम्हारा दीदार करना था। क्या करें, नौकरी का सवाल है। बड़ी मुश्किल से मसूद भाई को आमादा किया कि बस गया और आया, तो वो कहीं राज़ी हुए। या आपके मसूद भाई बहुत ख़राब हैं? ना, बुरी बात। करीब आता हुआ बोला, तुम जानती नहीं हो उन्हें, वो तो बहुत नाइस हैं। तभी तो मेरी ईद ख़राब कर दी। अच्छा, तो मेरे जाने से तुम्हारी ईद ख़राब हो जाएगी? वो हंसा। नहीं, मैं भी आपकी तरह हूँ ना, बेहिस। वो नाराज़ हुई। कह लो, बस घड़ी भर का मेहमान हूँ। वो दोबारा दराज होता हुआ बोला, मैं बात करूँ मसूद भाई से या अब्बू अम्मी से कहती हूँ? क्या? वो मज़े ले रहा था। यही कि मसूद भाई से कहें आप 1-2 रोज़ में आ जाएंगे। क्या फ़ायदा, तुम तो नाराज़ हो। जब से आया हूँ बात तक नहीं कर रही। वो शरारत से बोला। वो कुछ शर्मिंदा सी हो गई। बात तो दुरुस्त थी, मगर वो तो मजाक था। बिलाखिर इसने ख़ुद पर काबू पा ही लिया। अच्छा को खूब खींचकर मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, मेरी जान। जी। वो सुन नहीं पाई। कुछ नहीं, ऐसा करो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं चांद रात को हमेशा कंवल और बसीर को ले जाता हूँ, और आज तो जल्दी करो, वक्त कम है। गहरी सांस लेता हुआ बोला। अरीबा जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। वो बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद अरीबा को फिर से बाहर से हंसने बोलने की आवाज़ें आने लगी। वो सकूत जो रहीम के वापस जाने पर छाया था छटता हुआ लगा। अरीबा को अफसोस होने लगा। बेचारे सारे घर वाले कितने उदास हो गए। फिर इसे मसूद भाई पर गुस्सा आने लगा। कज़न है, ऐसे होते हैं कज़न। दुनिया में सब मतलबी हैं। बाहर आई तो रकीम सबको तैयार कर चुका था। अम्मी ने हंसकर इसे गले लगा लिया। देख रही हो बेटी, इसने हम लोगों को हंसा कर पागल कर देना है। ऐसे ही करता है। हमारे घर की खुशियाँ ही इससे हैं। उनकी नज़र में रकीम के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। तभी कमल वहाँ आई। भाभी, आपको पता चल गया ना? क्या? इसने पूछा। भाई की शरारत का? हाँ। वो कुछ समझी ना समझी से बोली। जब भी आप अब खुश हैं। अरे मैंने तो मना किया था रकीम को, मगर वो माने तब ना। किस बात के लिए? अरीबा के समझ में नहीं आ रहा था। यही कि मसूद भाई वाली बात। वो भाई की तरफ देखकर हंसी। अरीबा का इतनी देर का अंदर ही अंदर दबाया हुआ गुस्सा मसूद भाई के नाम पे बाहर आ गया। कदरे गुस्से से बोली, अजीब है ये मसूद भाई भी। रकीम इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मगर कोई यूँ भी करता है? अरे क्या हुआ? अब अम्मी चौंकी। मसूद से तुम्हारी कोई बात हुई है? वो पूछ रही थी। नहीं तो अम्मी, ये जो आज जा रहे हैं, ये सब उन्हीं का तो किया धरा है। ये कहाँ जा रहा है? अम्मी हैरान थी। कमल और बसीर हंसने लगे और वो बाहर की तरफ मुड़ा। रुको रकीम, अरीबा क्या कह रही है? वो अम्मी, शायद कोई गलत फहमी। सर खुजाकर शरारत से बोला, कोई गलत फहमी नहीं। आप अम्मी को सब कुछ बता दें। इन्हें अभी जाना होगा, काम है। मुझे काम की रट अजीब लग रही है। ईद के दिन भी कोई काम होता है अम्मी? अरीबा, मसूद भाई बहुत अच्छे हैं। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। रकीम, ये सब तुम्हारी शरारत है। बिला वजह तंग किया होगा तुमने हस्बे आदत। अरीबा, मसूद वाकई अच्छा है, और इसने हमें ईद का ज़बरदस्त तोहफ़ा दुबई का रिटर्न टिकट भेज कर दिया है। रकीम आज कहीं नहीं जा रहा, और ईद के बाद तुम इसके साथ जा रही हो। उन्होंने अरीबा को अपने करीब करते हुए कहा। सब हंस रहे थे और अरीबा रकीम की शरारत और अपने रिएक्शन पर गौर करके नदामत महसूस कर रही थी। वो जल्दी से अम्मी की गोद में सर छुपाने लगी। रकीम, अरीबा बहुत सीधी सादी है, ख़ास तौर पर पुरखलूस है। मुझे खुशी है मेरी दुआएं बराबर हुईं और तुम्हें ज़िंदगी का इतना अच्छा साथी मिला। अरीबा को प्यार करते हुए बोली, जहाँ मोहब्बत हो, जहाँ खलूस हो, वहाँ ईद का इस्तकबाल हमेशा सच्ची हंसी से किया जाता है कि ईद अल्लाह का इनाम है, और इनाम लेते हुए हमेशा मुस्कुराहट आ ही जाती है। आपका क्या ख्याल है? अल्लाह हाफिज़।